Maslow's contradiction. Method. Let's try to answer. How many times you guys have used this method? Contradiction to kill. Well, yeah, contradiction. Absolutely. Definitely होता है इसके familiar. Yeah. Family member. Don't square the line. Anyways, let's try to understand the crux of this math. How it works. And let's see some of our applications. One exercise. In the very beginning, we talked about something called law of Middlest. Law of Middlest puts the camera. You can have a statement. Statements वो होती हैं जो true या false. Only one thing. That's all the scales. The most important. We call it. Of no contradiction. You can't have a thing which is true and false at the same time. If there is something which is true and false at the same time, there is no place for that in mathematics body. Case for a proposition को गलत साबित करने के लिए ये काफी है कि या तो वो खुद contradiction या फिर it leads to a contradiction. The statement leads to a contradiction. Yeah, the contradiction in the language of logic में क्या कहता है? You did one exercise. You said अगर आपके पास एक statement है, if P and not P is a contradiction. P. Contradiction ऐसी statement which is always false है. Relation P. That's false. Falsely false. False and true. False again. And that's it. Kind of leads you towards contradictions, always false out. So if you have a kind, this kind of thing, this kind, it's like turns out to be true, only true, or negation be true, or true, negation be false, or negation be false. So you just get that's a contradiction. Simple things. Fine. हम ये कहते हैं you assumed there's an element to the set. Bublu भाई साहब जो हैं lives in the set. और थोड़ी देर बाद आप आगे चल के कहते हैं कि वो वहाँ नहीं रहा. पहले कह रहे हैं कि रहता है, फिर कहते हैं नहीं रहा. That's contradiction. इसका मतलब है कि जो आप पूरी बात कह रहे हैं वो ठीक है.
आपकी पूरी पूरी बात एम्बिगियस हो। पहले अज्यूम करें फॉर एग्जांपल यदि एक रेशो है दो इंटीजर्स का जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, फिर आगे चल के कुछ ऐसा हो जाए कि जाहिर हो जाएगा यार कॉमन फैक्टर से मतलब है कि it's conflicting. Let's say anything, everything which leads you towards a conflict. Conflict in the sense that it leads to that because something is wrong and this falls wrong and the truth at the same time. That damn thing is false. There's no place for that in mathematics. होना और ना होना कठिन नहीं, ये बुनियादी बात है। हम इस लॉ ऑफ नो कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ ऑफ नो कॉन्ट्रडिक्शन समझ आया? एक स्टेटमेंट और उसकी नेगेशन एट द सेम टाइम या फॉल्स नहीं हो सकती, या एक स्टेटमेंट एट द सेम टाइम ट्रू या फॉल्स नहीं, वो एक चीज हुई। तो हमारा मकसद क्या है discussions में? That we want to show that how does A implies B? A is a statement and B is a statement. ठीक है? ऐसा मत करना चाहता हूँ अगर A है तो फिर B है। और ये होगा चालू करने का मैं ये शो कर दूंगा कि इस स्टेटमेंट की जो नेगेशन है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन को लीड करेगी। इस स्टेटमेंट को जब आप नेगेट कर देंगे यू गोना हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जो नेगेशन है वो फॉल्स है। इस स्टेटमेंट की नेगेशन आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन तक पहुंचा देती है, हो भी नहीं और रख जाओ, ठीक है? लेकिन फिर इस स्टेटमेंट की जो नेगेशन होगी वो क्या होगी? और अगर नेगेशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या होगी? इस स्टेटमेंट के ट्रूथ को साबित करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट की नेगेशन वो फॉल्स है, और उस नेगेशन को फॉल्स करने के लिए इन दिस मेथड वी वांट टू शो दैट if you assume its negation is going to always lead you to a contradiction. It will always lead you to an absurd thing. ठीक है? गलत बात तक का 1 equal to 2 तक आपको पहुंचा देगा, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव तक पहुंचा देगा, W है और नहीं है तक पहुंचा देगा, ये किसी ऐसी बात तक पहुंचा देगा इसकी नेगेशन अज्यूम करना which is kind of contradiction. ये बात भी वाली, ठीक है? Now what is the negation of it actually? यानी हम ये कहते हैं, शख्स कहता है कि A से B फॉलो करता है और हम उसे समझा रहे हैं कि भाई देखो जब बारिश होगी तो बादल होंगे, और वो मानने को तैयार, ठीक है? और वो मानने को तैयार, हम क्या कहेंगे? चल भाई ठीक है, तुम दाल काटिए तो बात कर, that's what you say ना? What does it mean? It means that ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि A से B फॉलो करता है, चले आप फर्ज कर देते हैं कि आपके कहने के मुताबिक A से B की नेगेशन फॉलो करता है, और ये क्या चीज है? एक A से B की नेगेशन, it's a negation of basically negation. और हम ये शो कर देंगे कि ये नेगेशन, ठीक है, many things, ठीक है? ये ऐसा हो सकता है it leads to it can lead to eventually a contradiction basically, but that contradiction can be what? कि आपके assumptions negate हो रहे हैं। आप पहले assume करके आए कि यार एक चीज ऐसे है और बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। आप assume करके आए कि वो प्राइम है और बाद में पता चला कि वो प्राइम नहीं है। तो फिर
आप हो सकता है कि it can lead to you some absurdity. And not be the have आपको एक absurdity में पहुंचा दे. Absurdity से क्या मुराद है? You reach to something like this, which is not true. We know that. ऐसा हो ही नहीं सकता. Yeah, it leads to, you know, it leads to some, in general, some kind of a conflict or confliction. Now you're going to say that because ये कहना या ये assume करना is leading us towards, a contradiction or absurdity or negation of assumptions, तो हम कहेंगे कि ये assume करना ठीक नहीं, that's a false statement. ये assume करना एक false, अगर ये false है तो ठीक क्या? ठीक है. So essentially हम क्या कहेंगे? यदि अगर हमें A implies B प्रूव करना है तो हम A implies B की negation assume कर दें. ठीक है. And then we're gonna do something in assumptions को लेकर हम आगे चलेंगे और फिर हम देखेंगे those assumptions will lead us towards a conflict, towards an uncertainty, towards a contradiction. मतलब ये है कि आपने जो assume किया है A and not B वो wrong है. It's a false state. So if this is false, then so that's what the essence of the method is. ये bigger picture है. Let's do some examples. इसके लिए प्ले आप लिख सकते हैं कि ये क्या चीज है? ये नेगेशन है. सर ये अज्यूम में और कंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होगा? मतलब आप assumptions आपको लीड करेंगे, आपको पहुंचा देंगे किसी कॉन्फ्लिक्ट में और किसी absurdity तक, किसी कॉन्ट्रडिक्शन तक. वो कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी ना सर. जो अजम्पशन हमने लिया और वो बाद में फॉल्स हो गया तो कॉन्ट्रडिक्शन फाइनली हो जाएगा ना. मतलब फिर इन दोनों में फर्क क्या है? अज्यूम में और कॉन्ट्रडिक्शन में. एक आप चीज अज्यूम करके आ रहे हो, आप जो अज्यूम कर रहे हो उस पर कोई रिस्ट्रिक्ट, यू कैन अज्यूम एनीथिंग यू वांट, बट यू आर ओनली अलाउड टू अज्यूम दोस थिंग्स व्हिच डू नॉट लीड यू टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्टरी. ठीक है, वो आपको किसी गैर अक्ली बात तक न पहुंचाए. जैसे ही कोई भी चीज आपको किसी गैर अक्ली बात तक, नॉट इरैशनल बात तक, किसी कॉन्फ्लिक्टिंग बात तक पहुंचा दे तो आप कहेंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था ना वो चीज गलत है. वो आपको पहुंचा रही है यहाँ इस सिचुएशन में 1 equal 2 तक. तो आपने अज्यूम किया वो चीज नहीं, आपने अज्यूम किया है वो चीज नहीं है और तो ये है कि नेगेशन ठीक नहीं है. Let's think about it. For example, I'm saying as a simple identity, phenomenally sense. मैं कहता हूँ कि if A is not intersecting with B, अगर A और B के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है कि A is entirely sitting in, or you can do other way around. B is entirely sitting in A. एक ही बात. अगर A का B के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो A को कहीं तो होना है, तो वो कहाँ हो? कॉम्प्लीमेंट. For example,
I mean, obviously, as I said, always draw a picture. You can show it through example. Example there. Set कोई भी identity or show it through example. You know, verify it through example. And you should always draw a picture actually. For example, I'm saying that that's my A and that's my B. अगर आप A पर गौर करें तो वो B से बाहर बैठा है, इसका मतलब B के कॉम्प्लीमेंट में बैठा है। और अगर B पे गौर करें तो वो तो A के कॉम्प्लीमेंट में बैठा है। This is the thing basically. जो करते हैं कि ये इसको कुछ करना है। For example, मैं पहले ये शो करना चाहता हूँ। ये सबसेट ऑफ P, एक ऐसे शो करना P implies Q and Q implies P. So पहले मैं कन्वर्ट शो करना चाहता हूँ। A subset of B complement implies A that intersection A intersection B is happening. That's what I'd like to show. ये लगा? What do you say? Something that I want. Okay. अब इसको शो करने के लिए मैं कहता हूँ मैं इसको करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्शन with lots of ways, but let's do it through emptiness जब भी शो करनी हो कॉम्प्लेक्शन वर्क्स आते हैं invitation to कॉम्प्लेक्शन। अब मुझे बताइए मैं क्या अज्यूम करूं, मुझे ये इम्प्लीकेशन प्रूव करना किसको नेगेट करेंगे और नेगेशन क्या होगी बताओ सर। मैं बताऊं हम फर्स्ट करेंगे सर कि A B से बिलोंग्स करता है सबसेट B का। हम फर्क करेंगे कि देखें आपके पास अगर A implies B है तो assume A and negate B। हम जाएंगे suppose ये जो है वो सबसेट है B कॉम्प्लीमेंट का and it's not empty। क्या मतलब? अब ये बताइए अगर A intersection think about it as A intersection B is not empty, what does it mean? कॉमन है Overlapping इसका मतलब है कुछ कॉमन है Then X belongs to A and X belongs to B. इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। So we can find ठीक है an X in A intersection B that is X A में है X B में भी ठीक है। Keep this in head इसको ध्यान में रखें। Now as A subset of B complement तो मजे की बात पता चल रही है आपको A subset of B complement का कोई तो रोल होगा। इससे क्या आप नतीजा निकाल सकते हैं अगर ऊपर वाले दो फैक्ट्स को हम कंबाइन करें क्या नतीजा निकाल कंट्रोडक्शन होगा कंट्रडिक्शन आएगी पहले सोचने तो दो गलत चला क्योंकि वो B complement है अगर X B में क्या करने tell me precisely I can see you reach there tell me precisely A belongs to A but not B belongs to X does not belong to B complement. अब ये क्या सकते हैं देख मैं कह सकता हूँ अब देखें X क्योंकि A में है और A सबसेट है B का so X B कॉम्प्लीमेंट में होगा ठीक है सबसेट का हर एलिमेंट जो है वो
अपने सोफा सेट में बिलोंग करता है। अब अगर x b कॉम्प्लीमेंट में है और बी में तो इसका मतलब ये है b में नहीं। ये क्या बात है, अभी कह रहे हो कि है और अभी कह रहे हो कि नहीं है। अभी लिख क्या है कि है और अभी कह रहे हो कि नहीं है। सही और जाओ therefore गोरख धंधा, ठीक है, गोरख धंधा नहीं चाहिए भाई, ठीक है, गोरख धंधा नहीं चाहिए। therefore we're going to say this leads to a contradiction। आप कहेंगे this is, आप कहेंगे this is, लेकिन मुश्किल नहीं है, just play around and you can see this is a contradiction। Yeah. Contradiction to what? पता है वो precisely describe भी करेंगे जी। X belongs, does not belongs to be the contradiction to fact that X belongs इसको contradict कर, ठीक है। So it's like, देखें ये P and not P हो गया। अगर मैं इसको P assume करूं तो ये क्या है? Fact contradiction। Fact contradiction। Hence इसका मतलब ये है कि आप जहां से चले थे वो फॉल्स है। जो आपने assume किया था इसकी वजह से आ रहा है ना आगे। तो हम कहेंगे ये जो assumption है ये कि इसकी कोई जगह नहीं रखना चाहिए। That's a false thing। अगर ये false है तो true क्या है? इसका negation Statement is beautiful, it's simple, it's powerful, it's beautiful। ठीक है? So hence our assumption, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि आप जो है छोड़ हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि no contradiction and that's it, just stop the proof है। जैसे ही contradiction पे पहुंचे तो अब हम assume करते हैं कि रीडर जो है उसे पता है किसी contradiction तक पहुंच गए हैं तो स्टेटमेंट conflicting है और इसका मतलब ये है कि you know original statement is correct। Assumption is wrong, so the statement is true, ठीक है। So that's one part of it। That's one part। ठीक है जी। अब मैं दूसरा पार्ट शुरू करता हूं, यानी ये पार्ट। This was kind of this part। Next, दूसरे हिस्से में keep it, that's an if and only if statement। Because I need to show that this implies this, this implies this। So next, we're going to show that A intersection B is empty implies that A is subset of B complements। Yeah, खुद show कि contradiction जरूरत नहीं है, बगैर contradiction से कर सकते हैं, ना बगैर contradiction से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास assumption है और आपको ये show कर सकता है। इसको इसका सबसेट शो करना है। इसका सबसेट शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बबलू लेना पड़ेगा, ठीक है, बबलू लेना पड़ेगा। और वो बबलू कहाँ बिलोंग करता है? नहीं, वो शो करना पड़ेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। मेरा नुकता ये है कि अगर आप एक्स एक लें जो कि ए में हो तो वो कैसे बी कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचेगा? हम ये कहेंगे बी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अगर बी में आ जाए इस assumption का कॉन्ट्रडिक्शन, अगर वो x जो a में है वो b में नहीं हो सकता। तो सपोज करें, क्या सपोज करें, हमारे पास हमारे assumptions ट्रू हैं और हम ये शो करना चाहते हैं कि this is true। ये शो करना चाहते हैं
A is subset of B comp. In order to do so, what we need to do, हम ये reverse कर देते हैं. Let's pick an arbitrary element from A. We're going to show that it must be in B comp. अब वो element जो A में है, क्या B में हो सकता है? नहीं हो सकता. Intersection arbitrary. आप कहेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन B जो है empty है, so X cannot belongs to B. So if it is not in B, where the heck it should be? We complement. ये तो शो करना था. Take an element and show it there. Show that it is a subset of B comp. Anyway, ये मकसद था. ये बात करना नहीं था. ये you saw that I mean. आप ये मुझे साबित करके दिखाइए कि A और A कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन एम्पटी ठीक है. कोई सेट को आप बात कुछ इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्पटी होती है और यूज मेथड ऑफ ऑपरेशन. तरीका वही होगा. नेगेशन अज्यूम कर दें, शो कर दें false, therefore the state is going. If then statement नहीं, the statement तो है, just negate it. Just negate it. Assume it's negation, show that it's negation is there. Let's see something very important. Excuse me. Yeah, but language. There are things that only real person can need it class. Please, आगे पीछे चले जाते होंगे. इसमें इसका नाम है हमारा उसमें एलिमेंट में इधर के हमारे नाम उधर बिल्डिंग उसमें जा रही है. बता दो. Anyway, we want to show you this actually complement this. पता नहीं. कोशिश करें. हाँ. इसमें अगर आप कहेंगे तो जो आप करना चाहते हैं X belongs to an X does not belong to. कॉम्प्लीमेंट में कैसे नहीं हम बस ये कर रहे हैं दोनों की इंटरसेक्शन में दोनों में होगा. अब ये बताएं कि इसका दोनों में होना मसला है. भाई अगर इनका
इसका दोनों में होना जो है दैट्स प्रॉब्लम. मैं से नहीं दे रहा हूँ कुछ तीसरा नहीं अब सोचेंगे X2 is